Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your English class. Class 6, do you remember what we have done last time? Yes, last time we learned how to make the degrees of adjectives. This time we are going to learn what are 3 degrees of adjectives and how and where we are going to use them. Right? We have already learned this, but this time we are going to learn this in detail. Let's see. G. First degree is positive degree as was discussed earlier. There are 3 degrees of adjective. First one is called positive degree. Second is called comparative degree. And the third one is called superlative degree. Now positive degree where we use? Positive degree is a term that relates to adjectives. An adjective that does not make a comparison is said to be in the positive degree. In other words, the positive degree is the normal form of an adjective. What comes to our mind? G. When we are talking about only one noun alone, that can be thing, that can be person, that can be place, and we are talking it alone. We are not comparing it to another thing. Then we are going to use positive degree. Example is there. Now there is only one boy and he is very smart, he is very intelligent. Here smart means intelligent. He secures A plus grade in his studies. So example is Alian is a smart boy. Right now we are learning. Here we can see that only we are mentioning Alian alone. Right, we are talking about Alian alone. We are not comparing him to any other person, so we are using positive degree. What is positive degree? Alian is a smart boy. Right, so in this way we make daily on daily basis we use positive degree in our sentences. Some examples of positive degree are here. Mark is an intelligent boy. Right, so here we are getting information about only Mark. We are not getting information about any other person, or we are not comparing Mark with any other person. This is a cheap bag. राइट बेटा, हेयर चीप मीन्स सस्ता. एक चीप होता है घटिया और एक चीप होता है सस्ता. सो हेयर मीन्स चीप मीन्स सस्ता. दिस इज अ चीप बैग. यहाँ पे सिर्फ एक ही बैग की बात हो रही है एंड वी आर सेइंग दैट दिस इज ए चीप बैग. शी इज़ ए लविंग सिस्टर. वो एक लविंग सिस्टर है. सारा इज़ ए फैट गर्ल. हम सिर्फ सारा की बात कर रहे हैं. दिस कप ऑफ टी इज़ हॉट. यानी कि ये जो चाय का कप है ये गर्म है. राइट, सो वी आर नॉट कंपेयरिंग इट टू एनी अदर कप ऑफ टी. दिस ग्लास ऑफ मैंगो जूस इज़ कोल्ड. माई फादर इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैन. अब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अपने फादर की बात कर रहे हैं. और दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन नाउन. Only one noun, and we know very well that noun is the name of a person, place or thing. Right, so when we are talking about noun we are talking about all these things. Second one is comparative degree. Comparative. Now look at its name. Comparison होता ही दो चीज़ों के दरमियान में है. हमेशा दो चीज़ों को सामने रखा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने दो बुक्स पढ़ी और मुझसे किसी ने पूछा कि आप बताएं, कंपेयर करें कि कौन सी बुक ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है. ठीक है, तो मैं दोनों बुक्स को चूँकि मैं पढ़ चुकी हूँ तो मैं उसका नॉलेज अपने माइंड में रखते हुए आपको बताऊँगी कि ये वाली बुक ज़्यादा अच्छी है, ये बुक ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो आप ये वाली बुक पढ़ें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंपेयरिंग देम बोथ. ठीक है, सेम इज़ द केस विद पर्सनस एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे खड़े हुए हैं और एक की हाइट, ऑफ कोर्स एक की हाइट थोड़ी बड़ी ही होगी और एक की छोटी होगी ना. तो जब हम एक बच्चे की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे ही इज़ अ टॉल बॉय.
और जब वो दूसरे बच्चे के साथ आ गया और वो थोड़ा उससे लंबा है तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ टॉलर देन हिम, ही इज़ टॉलर देन अली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आलियान इज़ टॉलर देन अली। तो हमने दो बच्चों की बात कर ली, इसी तरह दो चीज़ों की बात भी हो सकती है, दो जगहों की बात भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंसेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स दे मॉडिफाई। आपको पता है एडजेक्टिव का काम क्या है? दे मॉडिफाई द नाउन। नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देके उसको मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लार्जर, स्मॉलर, फास्टर, हायर, they are comparative degrees of adjective. They are used in sentences where two nouns are compared. Where two nouns are compared, दो nouns का आपस में तकाबली जायज़ा लिया जा रहा होता है, उनका आपस में मुकाबला किया जा रहा होता है, उनकी आपस में किसी न किसी खसूसियत की वजह से हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो then we use comparative degree. Okay जी, examples are here. The cat ran faster than the dog. ठीक है, जो कैट थी वो डॉग से ज़्यादा तेज दौड़ी। ठीक है, अच्छा जी, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कीप इन आवर माइंड इज दैट इन कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज कंपैरेटिव डिग्री, वी आर गोइंग टू यूज देन, THAN, देन। ठीक है, क्योंकि हम देन का मतलब है उससे। ठीक है, एक देन होता है THEN, बच्चों को समझ नहीं आती कि वो देन कहाँ पे लगना है, ये देन कहाँ पे लगना है। ठीक है, वो THEN का मतलब होता है तब। ठीक है, टाइम के हवाले से वो हम लगाते हैं, और ये जो होता है THAN, ये हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, द कैट रैन फास्टर देन द डॉग। एम आई क्लियर? कि जो कैट है वो डॉग से तेज दौड़ी। फ्रूट इज हेल्दियर देन चॉकलेट। फ्रूट जो है वो चॉकलेट से ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, यहाँ पे हम चूंकि दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं, फ्रूट और चॉकलेट की अफादियत पे बात कर रहे हैं, फ़ायदे पे बात कर रहे हैं, तो हमने कौन सी डिग्री यूज़ की? सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हेल्दी फर्स्ट डिग्री है, हेल्दियर सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है हेल्दीएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया? हेल्दियर देन चॉकलेट। देन को मैंने रेड इसलिए कलर दिया ताकि आप अपने जहन में रखें कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगी तो उसके साथ देन का आना लाजमी है। ठीक है, मैक्स इज़ बेटर एट मैथ्स देन डेविड। ठीक है, जो मैक्स है वो मैथ में डेविड से ज़्यादा अच्छा है। नो, बेटर इज़ द सेकंड डिग्री ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू। जी, good. This is the second degree of good. And what is the third degree of good? Best. So good, better, best. So Max is better at maths than David. Next is Sana is more intelligent than Rania. Now Sana and Rania, these are two girls and we are comparing their intelligence, right? So what we are saying, Sana is more intelligent than Rania. Sana जो है वो रानिया से ज़्यादा intelligent है. Crow is cleverer than the sparrow. ठीक, कि जो क्रो है, कौवा है, वो चिड़िया से ज़्यादा अक्लमंद है। तो you can see that we have used then here. Now look at this. पहले हम आलियान की अकेले में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग हिम एलोन, वी वर यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। अब हम आलियान की और रोशान दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उनमें से कौन सा ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ पे स्मार्ट का मतलब मोर इंटेलिजेंट है। ठीक है, आलियान इज स्मार्टर देन रोशान। अब आलियान का मुकाबला रोशान से हो गया। ठीक है, तो हमने कौन सी डिग्री लगा दी? वी हैव यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री। आलियान इज स्मार्टर देन रोशान। एम आई क्लियर? ठीक है, आलियान और रोशान का मुकाबला हो रहा है, दो बंदों का मुकाबला हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड डिग्री यूज़ की और साथ में देन भी यूज़ किया। ओके जी, सुपरलेटिव डिग्री।
Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of equality. For example, the tallest, the smallest, the fastest, the highest. ठीक है, जब भी कोई भी क्वालिटी कुछ लोगों के दरमियान में, कुछ चीज़ों के दरमियान में जो एक्सट्रीम पे क्वालिटी होती है, फॉर एग्जांपल उन लोगों के दरमियान में जो अपर लेवल होगा, द मोस्ट अपर लेवल होगा या बिल्कुल लोएस्ट लेवल होगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम तीन या तीन से ज़्यादा लोगों का, चीज़ों का, नाउन्स का आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं तो वी यूज़ थर्ड डिग्री, मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन तीन कम से कम होना लाजमी है, क्योंकि अगर दो होंगे तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, अगर तीन होंगे तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, और अगर तीन से ज़्यादा होंगे, 300 होंगे, 30 होंगे, 30,000 होंगे, 3 लाख होंगे, 3 करोड़ होंगे, 3 अरब होंगे, जितने भी आप फैलाते जाएं, बढ़ाते जाएं, उन सब में से जो मुकाबला करके जो एक अपर लिमिट होगी, अपर मोस्ट लेवल लिमिट होगी या लोएस्ट लिमिट होगी, उसके लिए हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे? थर्ड डिग्री यूज़ करेंगे। इन अदर वर्ड्स दे डिस्क्राइब एक्सट्रीम्स, ठीक है, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं एक्सट्रीम है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बच्चे हैं, आप कहते हैं द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास प्लीज स्टैंड अप। अब बच्चों को भी पता होता है, क्योंकि वो असेंबली के लिए लाइन बनाते हैं, तो दे नो वेरी वेल कि हमारी क्लास में सबसे लंबा बच्चा कौन सा है। अगर दे आर कंफ्यूज्ड, वो खड़े होके एक दूसरे से कर लेते हैं कंपैरिजन, ओहो तुम ज़्यादा लंबे हो, चलो ठीक है, टीचर इज़ कॉलिंग यू, ठीक है। इसी तरह सेम इज़ द केस, आई कैन से द शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ द क्लास विल स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ द लाइन, ठीक है, कि क्लास में जो सबसे छोटे कद का बच्चा है वो लाइन के शुरू में खड़ा होगा। ऐसे ही लाइन बनाई जाती है ना, हम रोज़ जो बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, तो उसका हमारा यही स्टैंडर्ड होता है ना कि जो शॉर्टेस्ट बॉय है वो सबसे आगे है, फिर जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती चली जाती है, द टॉलेस्ट बॉय स्टैंड्स एट द बैक ऑफ द लाइन, ठीक है। दे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस टू कंपेयर 3 और मोर नाउन्स। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो कम से कम 3 नाउन्स के दरमियान में ज़रूर कंपैरिजन होना चाहिए, फिर 3 से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो सकते हैं। वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल हेयर वी हैव 3 बॉयज़, ठीक है। आलियान इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ द 3, इसको हम ऐसे भी जुमले में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 3 लड़के खड़े हैं, इसमें आलियान क्या है? आलियान इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ द 3। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें, हमने स्मार्टेस्ट से पहले दा लगाया है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री एक खसूसियत है, एक ख़ास क्वालिटी आ गई, तो हम लोगों ने उससे पहले दा लगाना लाजमी है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान ये है कि उससे पहले दा लाजमी लगता है। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है कि इस ब्लैंक में कौन सी डिग्री आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आपको नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे कौन सी डिग्री आनी चाहिए, तो आप देखें अगर ब्लैंक से पहले दा लगा हुआ है तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू यूज़ सुपरलेटिव डिग्री इन द ब्लैंक। ओके जी, नाउ अब इस जुमले को इस तरह भी हम बोल सकते हैं, आलियान इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ देम ऑल, ठीक है, आलियान जो है वो इन सब से ज़हीन है। नाउ सम एग्जाम्पल्स आर हेयर, कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। अब आप देख सकते हैं कि द गर्ल इन पर्पल ड्रेस इज सारा, द गर्ल इन येलो एंड ग्रीन ड्रेस इज राबिया, एंड द गर्ल हु इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर इज आलिया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने इनको कैसे कंपैरिजन किया, कैसे हमने डिग्रीज यूज़ की। सारा इज सैड, सारा सैड है, राबिया इज सैडर देन सारा, ठीक है, जो राबिया है वो सारा से भी ज़्यादा दुखी है, ठीक है। आलिया इज़ द सैडेस्ट ऑफ देम ऑल, जो आलिया है वो उन सब से ज़्यादा दुखी है। तो आप यहाँ पे देखें कंपैरेटिव डिग्री में हमने सैडर के बाद देन लगाया,
And in the third or in the superlative degree, we have used the before the third degree of adjective. In this way we are going to use them. Okay ji, let's see one more example. Rahim is a strong boy. You can see the first boy from the left side in the red shirt and blue shorts. He is Rahim, right? So Rahim is a strong boy. Okay ji. The boy in blue shirt and yellow trousers is Bilal. So Bilal is stronger than Rahim. So Bilal is stronger. We have used second degree, comparative degree, and then we have used then here. ठीक है, जो बिलाल है वो रहीम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और जो लास्ट में बच्चा खड़ा हुआ है, ही इज़ उज़ैर. ठीक है, हिज शर्ट इज़ ग्रीन एंड हिज ट्राउज़र इज़ ब्लैक. सो उज़ैर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल. चलें भाई, सुपरलेटिव डिग्री आ गई. जो उज़ैर है वो उन सब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, सो वी हैव यूज्ड द बिफोर स्ट्रॉन्गेस्ट. एग्जाम्पल्स आर हेयर. ट्रेन्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट इन लंडन. ठीक है, अब हमने ट्रेन्स की जब बात की तो वी आर कंपेयरिंग ट्रेन्स वर्सेस ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट आपको पता है बहुत, इसमें बहुत सारे व्हीकल्स आ जाते हैं. ट्रांसपोर्ट में जहाज़ भी आ जाते हैं, या आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जहाज़ के साथ तो पता नहीं यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है या नहीं किया गया, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपकी जो है बसेस हैं, रिक्शाज़ हैं, या और जो व्हीकल्स होंगे, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, हर किस्म के कार्ट्स आ गए ट्रांसपोर्ट में. तो उन्होंने कहा जो ट्रेन्स हैं वो यहाँ पे लंदन में सबसे एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट है. इसका मतलब है ये हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा महंगे टिकट होंगे इसके. इसीलिए तो उन्होंने यहाँ पे द मोस्ट एक्सपेंसिव कहा है ना, कि लंदन में जो सबसे महंगी आपकी ट्रांसपोर्ट है वो कौन सी है? ट्रेन्स हैं, रेलगाड़ियाँ. ठीक है. हैना इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन हर फैमिली. अब हमने यहाँ पे दा भी लगाया, सुपरलेटिव डिग्री भी लगाई. वी आर सेइंग, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, वी आर सेइंग हैना इज़ टॉलर देन एवरीवन एल्स इन हर फैमिली. कि हमने यहाँ पे क्या कहा? हैना इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन हर फैमिली, कि उसकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो उन सबसे लंबी है. ठीक है, सो वी हैव कंपेयर्ड मैनी पीपल हेयर विद हैना. ठीक है. अच्छा जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो चीज़ आपने याद रखनी है, व्हाट इज़ दिस? देन इज़ यूज्ड आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री. हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया. जो कंपैरेटिव डिग्री होगी, सेकंड डिग्री होगी, उसके साथ हमने देन लाजमी यूज़ करना है. द इज़ यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, थर्ड डिग्री होगी, उससे पहले द लाजमी यूज़ करना है. डू नॉट यूज़ द डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव सच एज मोर, बेटर एंड मोस्ट, लवलीस्ट. ये हमने लास्ट उसमें भी बेटा डिस्कस किया था. कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम वहाँ से सेकंड डिग्री भी बना रहे होते हैं, सॉरी सेकंड या थर्ड डिग्री भी बना रहे होते हैं उसकी एडजेक्टिव की, और साथ में हम मोर और मोस्ट भी लगा लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, थ्री डिग्रीज हैं ना. तो कई बच्चे कहते हैं आई एम मोर हैप्पियर, आई एम मोर हैप्पियर. ये जुमला कैसे गलत हो गया कि आपने हैप्पियर भी लगा दिया सेकंड डिग्री बनाने के लिए, उधर से आपने मोर भी लगा दिया. तो डबल नहीं कंपैरिजन करना. या आप कहें आई एम हैप्पियर टुडे देन यस्टरडे. ठीक है, या आप कहें कि आई एम मोर हैप्पी टुडे देन यस्टरडे. अव्वल तो आपको मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हैप्पी की सेकंड डिग्री हैप्पियर बन रही है तो यू शुड यूज़ दैट. ठीक है. इसी तरह मोस्ट, लवलीस्ट. अब लवलीस्ट का मतलब ही है कि सब में से प्यारा, सब में से खूबसूरत. ठीक है, लवलीस्ट का मतलब ही यही है, तो हम उसके साथ मोस्ट लगा लेते हैं, तो फिर ये हमारा गलत हो जाता है. ठीक है, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड होपफुली यू विल एंजॉय इट. थैंक यू.